انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی ٹھیک ٹھاک، جزاک اللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قاعدہ اپنا نورانی قاعدہ جاری رکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں تشدید. تو جتنے صفات اور جتنی اصول ہم پیچھے کر چکے ہیں ان کی دہرائی بھی کریں گے انشاءاللہ جس وقت بھی موقع ملا. لیکن آج ہم تشدید کریں گے. جو پچھلے ہفتے تھا ہمارا کیا تھا؟ نون قطنی. نون قطنی. تو نون قطنی میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھیں گے دہرائی میں. رب اشرح لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله مدد انشاءاللہ تعالی. تو نون قطنی کیا تھا ہم. تو نون قطنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ کا آخری الف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے. الف آیا ہوتا ہے اس کے ہمیشہ ہی آگے الف آیا ہوتا ہے. جو بھی لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے وہ الف ہے. تو وہ اس الف کو پڑھا نہیں جاتا اور جلدی سے اس کو پڑھے بغیر جلدی سے آگے جو ہے نون پڑھ دیا جاتا ہے زیر والا. ٹھیک ہے. تو جلدی کی جاتی ہے. لیکن اگر رکا جائے اس لفظ پر تو وہ الف پڑھا جائے گا. اور پھر جو نون جزم والا ہے اس سے شروع نہیں کیا جائے گا. اس سے آگے حمزۃ الوصل ہوتا ہے یعنی الف ہوتا ہے جو آگے. پھر اس کو اس نئے آنے والے اگلے آنے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس صورت میں پھر نون قطنی نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو تشدید شد شین دال شد ہم بچپن میں ہی سیکھتے ہیں. جب قرآن سیکھتے ہیں تو شد کا لفظ سیکھتے ہیں. تو شد ان حروف پر آتی ہے. کیا چاہے پہلے تو اس کی شکل دیکھ لے. ایک ڈبلیو سا بنا ہوا ہے جو کہ لوور کیس ہوتا ہے. چھوٹا ڈبلیو جو ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے. تو شاد کی ڈبلیو شکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی شکل نہیں ہوتی. بس یہی شکل ہے اس کی. اس کے 3 دندانے جنی حروف کی شاد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر جے شاد ہو وہ مشدد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مشدد. ہم کہتے ہیں مشدد حرف ہے جی یعنی اس کے اوپر شد آئی ہوئی ہے. تو اس طرح مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو 2 دفعہ پڑھنے میں اس کو پہلے اس کے جزم آئی ہوتی ہے. پہلے جزم آئی ہوتی ہے اور جزم کے بعد ہماری پھر آتی ہے حرکت. چاہے وہ کوئی بھی حرکت ہو وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے پہلے با زبر الف با. یہ آج کل مجھے لکھنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. جیسے یہ با ہے حمزہ جہاں پہ جو حمزہ قطع ہے اس کے بعد با جو ہے جزم والی با ہے. اور جزم والی با کے بعد
जो है वो ज़बर वाली बा है। तो इसी तरह जहाँ पे जज़म वाली बा के बाद ज़ेर वाली बा है, जहाँ पे जज़म वाली बा के बाद पेश वाली बा है, यानी 2 बार बा आई है। एक बार हरकत के साथ, जो आखिरी बार होती है वो हरकत के साथ आई होती है, और जो पहली जो होती है वो जज़्म वाली होती है। जज़्म की हालत हमें नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ हरकत वाली हालत उसकी नज़र आ रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये लफ़्ज़ अलहदा लिखा जाए, अलहदा-अलहदा सभी को, तो मुश्किल क्या होगी कि हमारा पढ़ना हमें मुश्किल लगेगा। पढ़ाई में हम मुश्किल महसूस करेंगे, तकलीफ़ होगी पढ़ने में हमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 2, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ड्रॉ करने की, जैसे बा ज़बर, ये हर बार मुझे इससे इधर लेके जाना पड़ता है, कोई आसान नहीं है जहाँ पे। ये अलिफ, और इसमें ज़बर, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रहा। ये जो बा है इसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपको नज़र नहीं आ रही इस राइटिंग में। ये बा नहीं ना नज़र आ रही, आपको नज़र आने वाली बा कौन-सी है? जी, जो कि हरकत के साथ है, यानी ज़बर होगी, या ज़ेर होगी, या पेश होगी उसके ऊपर। लेकिन जो जज़्म वाली बा है उसको हम पढ़ते हैं अब बा, अब बा। कितना मुश्किल होगा, पहले अब कहेंगे, रुकेंगे, फिर बा कहेंगे, क्योंकि जज़्म वाले हर्फ के ऊपर रुका जाता है, सुकून लिया जाता है, सुकून में आया जाता है। तो जब रुक के पढ़ेंगे तो हमें तकलीफ होगी पढ़ने के लिए। तो अरब क्या करते थे, जिस लफ्ज़ को या हर्फ को पढ़ने में उन्हें तकलीफ होती थी वो उसको बदल दिया करते थे। यानी उसको शॉर्टकट कर दिया करते थे, शॉर्ट में पढ़ते थे। जैसे हम क्या करते हैं, 1 मिनट सॉरी, ये है असल इसकी हालत, ये जो है, और बाकी सब भी ऐसे ही होंगे। तो सेम ही हर्फ डबल आया होता है, 2 बार होता है। पहली बार हमेशा जो कि इसकी हिडन शक्ल होती है, जो इसकी छुपी हुई शक्ल होती है, वो जज़्म वाली होती है। हर्फ कोई भी हो, लेकिन पहला हर्फ जज़्म में होता है और दूसरा हर्फ जो है वो हरकत में होता है। अब इसको पढ़ने और पढ़ाने के भी तरीके मुख्तलिफ हैं। मैंने बहुत सारे तरीकों से यानी पढ़ा भी है, सीखा भी है, और मैंने पढ़ाया भी है। किस तरह? क्योंकि जिस तरह वो अदारे पढ़ा रहे हों उस तरह आपको फिर पढ़ाना पड़ता है। कुछ कहते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ ज़बर बा जज़्म अब, बा ज़बर बा अब बा। लेकिन कुछ कहते हैं जहाँ पे आके हमज़ा ज़बर बा शद अब, बा ज़बर बा। बस इस तरह के हमज़ा ज़बर बा शद अब, बा ज़बर बा। ये असल में हमज़ा है, ये जो अलिफ है ये हमज़ा है, हमज़ा क़ता है। तो इसके ऊपर हरकत आई हुई है। क्योंकि अगर ये खाली होता तो हमज़तुल वस्ल होता, तो ये हमज़ा क़त है। तो इसके ऊपर हरकत है, तो हरकत जो है वो उसके साथ मिलाई जाएगी जो आगे हर्फ आएगा, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब बा, अब बा, जैसे ता, अथ ता, अत्ता। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिस तरह हरूफ़े क़लक़ला हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि हरूफ़े क़लक़ला किस तरह ये ये इसके ऊपर क़लक़ला हो रहा है बा के ऊपर। जब जज़्म के साथ आएगा तो हरूफ़े क़लक़ला में से एक है। तो जब हम देखते हैं ना कि शद वाला हर्फ जो है, पहले हर्फ को हम लंबा नहीं करते, यानी पहले हर्फ को अब अब बा, बा, अब, बा, अब, बा,
अब्बा, इतना बस करते हैं। तो फिर जो अगर कोई आ गया है आगे लंबा, वो और बात है, ठीक है? अगर हरकत वाला ही है जी आखिरी हर्फ, आमतौर पर ये हरकत वाला ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो किसी वजह से कोई आगे भी डाल दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा जैसे अलिफ भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या क्या जहाँ पे गलती कौन-सी नहीं करनी? इसको खींचना नहीं है। अब अब बा अब बा नहीं करना। अब अब जल्दी से। अब वहाँ जहाँ पे तो होना तो कलकला चाहिए, अब होना चाहिए, लेकिन हम इसको होल्ड करते हैं। अब अब बा मुश्किल है, अब्बा आसान है। इसी तरह ही ये सारी तख्ती जाएगी। अब किसी को पता नहीं चला तो वो मुझे पूछ ले। इसको पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है, मैंने बता दिया आपको, 2 तरीके बता दिए। तीसरा ये कि इसको हम यानी कि एक को अलिफ पढ़ते हैं कि अलिफ ज़बर बा जज़्म अब, ये भी हमने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया। और दूसरा हमज़ा ज़बर बा जज़्म अब, ये भी पढ़ दिया है। तो शद के साथ भी पढ़ते हैं। जब ये मैंने जो बताया, हाँ, हमज़ा ज़बर बा शद अब, बा ज़ेर बी, अब भी, अब भी। तो इस तरह हम इसकी तख्ती इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो कौन बहन पढ़ना चाहती है पहले? अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझे पूछें। सभी समझ आ गई है? कोई बहन ऐसी है जिसको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसकी कौन तख्ती पढ़ेगा? अपना हाथ खड़ा करें। जो बहन पढ़ना चाहती है अपना हाथ खड़ा कर ले। जिस बहन ने पढ़ना है जल्दी जल्दी अपना हाथ खड़ा कर ले। यास्मीन बहन आप पढ़ना शुरू करें, आपका हाथ खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका जोड़ करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ ज़बर बा, अलिफ ज़बर अलिफ होता है, अलिफ, अल्फ नहीं अलिफ, होता, अलिफ। अलिफ, अलिफ ज़बर बा, बा, बा ज़बर बा, अब बा, अलिफ, अलिफ ज़बर बा, शाद बा जज़म कहे ना, अलिफ ज़बर बा जज़म अब, बा ज़बर बा, अलिफ बा जज़म अब, अलिफ ज़बर बा जज़म अब बे, बेज़ेर अब अच्छा आगे वाला, ठीक जी, अब भी है। अलिफ ज़बर बा पेश, जज़म, जज़म जज़म पेश, नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये देखें 2 दफ़ा पढ़ना है आपने। आप सिर्फ़ 1 अलिफ दफ़ा ज़बर ही उनको जज़म भी कह रहे हैं और ज़बर भी ज़ेर भी कह रहे हैं। मुझे लगा अच्छा, था आप ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि आप तीसरा पढ़ लें तो फिर देखते हैं मैं क्या पढ़ते हैं। जी, जी, ऐसा है कि जी, अलिफ ज़बर बा अलिफ जज़म ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, अलहदा पढ़ें। अलिफ ज़बर बा जज़म सही है? हाँ जी, अब अलिफ उसको उसका अलिफ उ ज़बर उ उसका फ़ोनिक साउंड भी लाएँगे, उसकी आवाज़ भी लाएँगे पहले, फिर जाके दो हरकत वाला हर्फ कहेंगे, ठीक है? पहले उसकी अलिफ आवाज़ लाएँगे, उसकी साउंड जो होती है उसको लाएँगे पहले। अब की साउंड पूरी होगी फिर बा होगा, क्योंकि जी, ये अलग-अलग ही थे, जिनको इकट्ठा करके तशदीद की शक्ल में लिख दिया गया है, ठीक है? जी। पहले पढ़ेंगे अलिफ ज़बर हमज़ा हमज़ा बा पेश बू, अबू अच्छा ऐसा है कि आप अभी सुनेंगे जी, और आबदा बहन आप पढ़ेंगे प्लीज़?
آپ سنیں اور پھر میں آپ سے سنتی ہوں بعد میں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سسٹر کسی اور سسٹر سے کہ میں نے تو ابھی جوائن کیا، سنا ہی نہیں آپ نے پہلے کیا اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی مجیدہ بہن آپ پڑھیں. ہاں جی پڑھ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اعوذ باللہ ہی کو بھی لائے نا ساتھ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آ موٹی کریں. من الشیطان می الرجیم می می من نشیطان. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نررحیم، ہی کو پھر چھوڑنا نہیں ہے، اس اچھا کو ہیم کہہ کے نہیں نررحیم چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. نررحیم. کیونکہ اس کو ہا پڑھنی، ہا نہیں پڑھنی. اچھا جی. الف الف زبر با مد اب با زبر با ابا مد کہاں ہے؟ سوری جزم. ہم، الف زبر جزم با با زبر الف با. زبر باج. اچھا ایسا ہے کہ ہاں جی. پہلے حرف آتا ہے، حرکت اس کی بعد میں اس کے اوپر الف آتی ہے، ٹھیک الف ہے. زبر با جزم ہم، اب اب با زبر با ابا. ٹھیک ہے. الف زبر با جزم اب با زیر بھی اب بھی. الف زبر با جزم با پیش با جزم سوری جزم با اب، جزم اب الف با زبر پیش. با جزم اب، با پیش الف بو الف ابو. زبر با جزم اب با پیش بو ابو. الف زبر تا الف زبر تا جزم ات تا زبر تا اتا اتا. الف الف زبر تا جزم ات تا زیر تی اتی. الف زبر تا جزم ات تا پیش تو اتو. ٹھیک ہے بات جی. ہم، آگے بھی پڑھو. پڑھ لیں ایک اور لائن. الف زبر سا الف زبر جلدی سا جلدی پڑھیں جزم نا، جلدی اس جلدی. اس سا زبر سا اسا. الف زبر سین کی طرف نہ جائے. اف اس اف. اسا اسا. ہم، الف زبر سا جزم اس اس سا زیر سی اسی. الف زبر تا سا سا جزم اس سا پہ سو اسو. الف زبر جیم اس کو کوئی بھی بہن سے پیش سو نہ کہے، ٹھیک ہے. سا ہے، الف با تا سا ہے، الف بے تے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عربی جو ہے وہ اردو سے نہیں ملانی. اردو کو بھی الف ہم نے خود بگاڑا ہوا ہے، الف زبر ٹھیک ہے. جیم جزم اج جیم زبر جا اج جا. الف زبر اجا، اجا اجا نہیں. لیکن لمبا اجا. کون سا کوئی کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں نہیں کرنا ہے باجی اس کو. نہیں. اج 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 جیسے اج ہے اجا اور پھر اجا جا. اج اجا اجا. اجا. ہم، الف زبر جیم جزم اج اج جیم اج نہیں، اج. مجہول نہیں پڑھنا اسے. الف زبر جزم جا اج جام الف جیم. زبر نہیں نہیں، دوبارہ پڑھیں اسے. الف زبر ہم، جیم جزم ہاں اج جی. جیم زیر جی اجی. الف زبر جزم الف زبر جیم جزم اج جیم پیش جو اجو. ہم، ٹھیک. پورا پڑھنا باجی. نہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر دے آپ کو. اور کسی بہن کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا؟ جس نے پڑھنا ہاتھ جلدی سے کھڑا کرے، ورنہ میں پھر کسی کو چوز کر لوں گی اور مجھے نہیں پتا کون پڑھنا چاہتا ہے کون نہیں. رفت بہن آپ پڑھیں. ہاں جی جی رفت باجی. بہن آپ پڑھیں پلیز جی. تیسری لائن میں. بسم اللہ الرحمن اس کو الرحیم. اگر آپ حمزہ کہیں گے تو آپ کی سمجھ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اصل میں یہ الف نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے نا. حمزہ زبر ایسے کہیں باجی حمزہ ہاں زبر جی آ یہ حمزہ ہی ہے جو کہ ہاں الف کی شکل میں آیا ہے. جی. حمزہ زبر آ ہاتھ جزم ہا
नहीं हा नहीं नहीं, जज्म वाला हर्फ अकेला कैसे कहा जाता है? वो हमजा तो मिलाया जाता है ना। हमजा जज़म हा हमजा जबर, अच्छा जी, जज़म हा हाँ जी हमजा जबर, हा जज्म, आह, हा जबर, हा, आह, हा को भी हाँ, मुंह खोल के, आह, जी हमजा जबर हा जज़म आह, हा जबर हा आह हा ठीक है बाजी जी पढ़ते रहे। हमजा हमजा जबर हा जज़म जेर ही हमजा जबर, हा जज्म, आह, ज, पहले हम आह ही होगा क्योंकि जबर पहले हर्फ पर जेर है है हाँ जो जी मिलाया जा रहा है, तो जेर वाला हर्फ बाद में कहा जाएगा, ठीक है। हमजा जबर आह हा जज़म ही आह ही हमजा जबर हा जज़म आह आह, हा आह हा पेश हु आह हु ठीक है बाजी हम्म। हमजा जबर आपकी हा जो है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, आह वैसे आप पढ़ ठीक रहे हैं। हु हमजा जबर खा जज़म आह खा जबर खा अख खा हमजा जबर आ खा खा आपके जे ना खा हा और खा में इतना फर्क नहीं है, ठीक है। खा खा आप खा ठीक है बाजी खा 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 खा, मुंह खुला, मुंह जरा है बिल्कुल ना, वो बिल्कुल स्माइली है क्योंकि ये स्माइली लेटर नहीं है, स्माइली जी मुंह नहीं है, लेकिन आपका गोल भी नहीं है आगे से। क्यों? क्या वजह है इसके ना गोल होने की? हमजा आप पढ़ती हूँ हमजा जबर ज़ुबान आ की जड़ पीछे से उठी हुई है ना, तो उसको जी गोलाई तो नहीं लानी, मुँह को आगे से होंठों को गोल करने से इसे नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पीछे जी से ज़ुबान की जड़ को उठाया ज- जाता है कोई भी जी हर्फ मोटा जी करने के लिए, ठीक है? तो इस जहाँ पे हमज़ा ज़बर खा जज़म अख, खा ज़बर खा, अख खा, अख खा, ठीक है? हमजा जबर खा जबर आख खा हमज़ा जबर खा ज़बर खा जज़म हमजा जबर खा जतम अख, आख खा जबर खा अख उहुँ, खा हमजा जबर खा जज़म अख, आख खा जेर खी अख खी अख, अखी नहीं, अखी, खी अखी, अखी ख़ा मोटा भी अखी है, जी तो इसको ठीक है अदा करना, अखी ठीक है। ह- हमजा जबर खा पे खा जज़म अख खा हाँ, पेश हाँ, हु अख हु ओके, हमजा जबर ठीक है। द, आगे दाल पढ़ना है तो जज़म पढ़ लेंगे। दाल दाल जज़म अत दाल जबर दा अत दा ठीक है बाजी जिस बहन ने भी आगे पढ़ना है अपना हाथ खड़ा कर ले जल्दी से। हमजा जबर अ, दाल जज़म अत अच्छा, अत जब दाल आता है, जी तो दाल के ऊपर जज़्म आ जाए तो क्या होता है? कलकला होगा ना वो करें फिर, क्योंकि आप जोड़ कर रहे अद हैं ना, इसकी अद इसका स्पेलिंग कर रहे हैं। अद अद, अद दाल ज़ेर दी, अद्दी। अद्दी कुर्बानी तो बाजी आता है वैसे लेकिन तो है ना जोड़ नहीं अद, ना अद अद्दी दी, अद दी, तो हम कायदा इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, हमें जोड़ भी अद करना आ जाए। हाँ जी हमजा जबर दाल जज़म अत दाल पेश दू अद्दू ठीक है बाजी आगे हाँ, पढ़ते रहें, हमजा पढ़ते जाएं। हमजा जबर जज़म जार नहीं, अत हमजा ज़बर ज़ाल जज़म अद, जाल जज़म अत जा अद, अज ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा। जाल जबर जा अज्जा हमजा जबर जाल जज़म अस जाल
زیر زی ازی حمزہ زبر ارری بس ازی آگے حمزہ والا حمزہ زبر زال جزم زال جزم اس از اس زال پیش زو اسزو اسزو آگے ہی پڑھنا باقی نہیں نہیں میں کون بہن آگے پڑھنا چاہتی ہے جلدی سے پڑھے پلیز جس نے پڑھنا ہے وہ جلدی سے شروع کر لے اب یاسمین بہن آپ پڑھ رہے تھے تو آپ پڑھے آپ کو جی پتا چل گیا کہ کیا پڑھنا ہے نا کس طرح جی پڑھنا ہے حمزہ زبر را جزم را زبر نہیں را نہیں ہاں اس کی آواز پہلے لائیں اور پھر دوسرا حرف کہیں پہلے اس کی آواز آئے گی ٹھیک ہے حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زبر جے پڑھا گیا اب را جزم پڑھے را جزم حمزہ زبر جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ با کے بجائے را لا دیں جی ٹھیک ہے پہلے جے پڑھیں گے حمزہ زبر پہلے پڑھائیے اور حمزہ را حمزہ جزم حمزہ زبر با یا حمزہ زبر را جزم جہاں را تک اب جزم ہو گیا را زبر ار ار نہیں را ار زبر نہیں میری بہن آپ ابھی بھی ایسے پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر با جی حمزہ زبر را جزم ار ار کہیں میرے پیچھے حمزہ زبر ار را جزم ار ار ویسے بھی حمزہ یہ را موٹا زبر رہے گا ار ار اور موٹا رہے گا را زبر جزم والا بھی را جی زبر را ار ار را زبر را ار را ار پیچھے سے ار زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے ار را ایک موٹا ار حرف کہنے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ موٹا ہم کر رہے ہیں اس کو زبر اور پیش کے ساتھ ورنہ یہ موٹا نہیں ہے جی حمزہ ٹھیک ہے زبر آگے والا ہے حمزہ زبر را جزم ار ار ریز را نہیں نہیں زیر ار کہیں گے پہلے ار اور نہیں کریں گے 2-3 دفعہ تکرار نہیں کریں گے صرف دورہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہی ہوتا ہے بس جی ار ار اور ٹھیک ہے جی حمزہ زبر را جزم نہیں نہیں اس سے کہیں حمزہ زبر را جزم ار را زیر اور ری یہ پیچھے والا زیر والا ہاں آپ نے اس کو پھر حرکت کے ساتھ نہیں نا آپ نے پڑھا اس کو حرکت کے بھی ساتھ یہ اس کے ساتھ بھی پڑھنا ہے نا آپ اتنا پڑھ کے آگے چلے گئے ہیں نا جی جی ٹھیک ہے جہاں پہ پڑھیں اب اور اسی کو ہی بنا لیں ٹیمپلیٹ جہاں پہ لائیں را کو اب جہاں پہ حمزہ زبر ہاں اور را 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 جزم ار اور رو ار را پیش رو را پیش رو ار رو اب پیش اور والا را بھی موٹا پڑے جائے گا اور جی پہلا بھی اس کا را کیونکہ ار زبر ہے پہلے تو یہ موٹا رہے گا ار نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ اور شاد والا را ہے تو وہ اس کو فالو کر رہا ہے ٹھیک حمزہ زبر حمزہ زبر زا جزم زا زبر زو ازو ٹھیک ہے حمزہ زبر حمزہ زبر زا جزم از یہ اب از سختی والی زا ہے از از سیٹی پائی از جائے گی زا زبر زا زبر زا از زا موٹا نہیں ہوگا یہ باریک ہے ازا سمائلی ہے منہ آپ کا ذرا مسکرانے والا ہو ٹھیک ہے آگے حمزہ زبر زا جزم از زا زیر زی از نہیں آپ اس کو جب جزم والا ہے اس کو بھی کہیں گے نا اس کو بھی کہیں حمزہ زبر زا جزم از زا پیش زو ازو
اچھا میرے یہ پیچھے والا پڑھ رہی تھی زی والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ازو ازو امزا زبر سین امزا زبر سین جزم اس سین زبر سا اسا امزا جزم سین سین جزم سین زیر سی اسی. حمزہ زبر سین جزم. ٹھیک ہے پڑھیں آگے ہم دیکھتے ٹھیک ہیں ہے. انشاءاللہ. امزا پڑھیں. زبر امزا زبر سین جزم سین پیشو نہ اسو. یہی پرابلم ہے. آپ نا اس کو جہاں پہ رک کے آپ اس کی فونک ساؤنڈ نہیں لاتے. آواز ایک لفظ کی جو پیدا ہوتی ہے نا جہاں جی تک کی وہ نہیں آپ پوری کر رہے. آواز نہیں لاتے. آپ جوڑ کرتے ہیں جوڑ جی کر کے آگے چلے جاتے ہیں اس کی آواز نہیں لاتے. جب بھی شد والا اسو حرف پہلا پڑھا جاتا ہے اس کی ایک آواز آتی ہے. پہلے آواز لاتے ہیں. اب حمزہ زبر با جزم آپ کیا جاتے ہیں آگے با زبر با. حمزہ زبر با جزم اب با زبر با اس طرح پڑھنا ہے. حمزہ زبر جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں حمزہ حمزہ زبر زبر سین جزم اس سین سین جزم زبر اس سا اس تھا. ٹھیک ہے. اسا. اچھا ٹھیک ہے. اسو سین زیر حمزہ زبر یہ والا کہ یہ پیچھے والا. سین زبر سین زیر ہاں یہ جہاں پہ میں یہ بتا رہی ہوں. جی جی. حمزہ زبر حمزہ زبر سین جزم اس سین زیر سی اسی. اسی اسی. حمزہ زبر سین پیش سین جزم حمزہ زبر سین جزم سین پیش سو اسو. ٹھیک ہے. حمزہ زبر سین جزم اس سین پیش سو اسو. اسو حمزہ زبر سین جزم اس اسو. نہیں آپ کہیں گے میرے پیچھے کیونکہ آپ کہتے نہیں ہیں. حمزہ اچھا. زبر سین جزم اس حمزہ زبر سین جزم اس سین پیش سو سین پیش سو اسو. اسو. ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھیں جس طرح میں نے حمزہ بتایا زبر ہے اس طرح. حمزہ زبر شین جزم اش اش شین اس کو زبر تا. ہولڈ نہیں کرنا. اس کی آواز تفشی ہے. اس میں صفت ایک جی پائی جاتی اس کو ہولڈ نہیں کرنا. اش اس کو پھیلنے دے منہ میں. جی. اش اگر آپ اش کریں گے تو وہ آپ آگے کو لا رہے ہیں اور اس کو آواز کو پھیلنے نہیں دے رہے کیونکہ یہ موٹا حرف نہیں ہے. یہ تو پھیلنے والا حرف ہے. جی. اس کی آواز جو ہے پھیلتی ہے منہ میں. حمزہ زبر شین جزم اش 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 شین زبر شا اشا. ٹھیک اچھا ہے. یہ سختی پائی جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. جب بھی اش آپ سختی سے اس کو ہٹ کرتے ہیں جی. اش اش. اش ٹھیک ہے. اش جی. شاد والا جزم والا جو ہے پہلے اس کو سختی سے ہٹ کرتے ہیں. یا اش اش نہیں کرنا. آہستہ آہستہ نہیں سختی سے اس کو مارنا ہے. جی. ٹھیک ہے. اشا. حمزہ زبر شین جزم اش اش شین زیر شی اشی. ٹھیک ہے. ہاں جی. آخری حمزہ زبر شین جزم اش شین پہ شو اشو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کیسرا بہن آپ پڑھیں گے؟ السلام الحمدللہ علیکم. آپ آگے. آپ نے بہت کوشش کی ہے اس دن بھی آنے کی. پتہ نہیں آپ کا کیا پرابلم ہو رہا ہے نا. ہاں میم میرے فون پہ 1-2 دفعہ کلاس اٹینڈ ہوئی ہے. آج پھر میں نے ہوں ان کے ابو سے فون لیا تو اس پہ پھر ہوئی ہے. اس پہ نہیں کی ہو رہی آج پھر. تو ہاں میں جی. نے ابھی جو سنا ہے دیکھتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے میں پھر نہیں تو میں آگے کرنے لگی ہوں. میں بھیجیے. کوشش کرتی ہوں بلکہ مجھے آ جائے گا. اگر میں پڑھوں گی تو مجھے آ جائے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزہ زبر حمزہ زبر صاد یہ دو ہے نا دو صاد 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 اچھا حمزہ زبر صاد جزم جزم اس اس نہیں نہیں حمزہ زبر صاد جزم اس صاد زبر سا اچھا صاد زبر سا اسا ہم، حمزہ جزم صاد زیر اس جزم حمزہ حمزہ زبر حمزہ زبر صاد جزم اس سا ریسی اسی اسی ہوگا نا اسی سواد ہے نا موٹا موٹا ہوگا ہاں حمزہ سو زبر صاد جزم اس صاد زیر سی ہاں اسی اسی سی کی حمزہ طرح نہ اس کے میں سیٹی پائی جاتی ہے لیکن ہاں اتنی سیٹی نہیں ہوتی جتنی سین اچھا میں ہوتی ہے تو سین ہوں ہونے سے بچائیں اس کو ٹھیک ہے آگے اچھا ویسے سخت ہیٹنگ ہوتی ہے اس کی ہاں جی حمزہ زبر صاد پیش صاد جزم اس سا پیشو اسو اسو حمزہ زبر داد داد جزم دو اد دو حمزہ زبر حمزہ پھر زبر ہی ہے میرے آگے بھی زبر زاد ہاں زاد پہلا ہر حرف زبر والا ہے جہاں پہ حمزہ زبر زاد زاد جزم جزم اد جزم والا پہلے پڑھے ہاں داد جزم داد زیر دی اد دی اد دی داد دی اور داد جو بھی آپ ہاں نے کہنا ہے لیکن زاد کو زا سے نہ ملا جائے زاد نہیں ہے جی کیونکہ وہ زا کی آواز آ میں جائے اب داد ہی پڑھتی ہوں قرآن پاک پہ بھی جب سے آپ نے بتایا نا میں نے اپنی زبان کی جوڑی جو ہے نا کروٹ آپ کی داڑوں وہ کو لگا رہی مگر وہاں سے ہی نہیں آ رہی کیا اد حمزہ یہ دیکھیں حمزہ زبر داد جزم اد دا زبر دا اد دا حمزہ زبر داد جزم اد داد داد زے دی اد دی حمزہ زبر داد پیش حمزہ زبر داد جزم اد داد پیش دو اد ٹھیک ہے جو پہلا داد ہوگا جزم والا اس کے اوپر آپ نے باہر نکلنے سے بچانا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ آپ کی زبان جو ہے اس کی کروٹ داڑوں کے ساتھ ہی رہے گی اس سے جدا نہیں ہوگی جب آپ جزم والا داد کہیں گے تو ٹھیک ہے حمزہ زبر تو جزم تو زبر تو حمزہ زبر تو موٹا ہے نا تو منہ نے گول کر کے نہیں موٹائی کرنی حمزہ پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے تا زبر تا ات ویسے تو اس کے اوپر ہوگا نا کلکلا حمزہ زبر تا جزم ات ایسے ہوگا ات حمزہ زبر تا جزم ات تا زبر تا ات تا ات تا موٹا ہے نا ہر حرف جو موٹا پڑا جاتا ہے نا حرف موٹا پڑے جانے والا حرف سے پہلے جب حمزہ آئے گا نا چاہے حمزہ قطع ہو چاہے حمزہ وصل ہو یہ وہ حمزہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے سوری وہ بعد میں جو آتا ہے ان کے بعد میں پہلے والا نہیں ٹھیک ہے بعد میں جو آئے گا نا حمزہ الف جو آئے گا تو تا جزم تا نہیں ہے تو ہے تو جزم ات تو زیتی تو ات زیتی ات پہلے ات کریں پھر تی کریں تی تو پھر جب اکٹھا پڑھیں گے اتی وہ پھر کلکلا غائب ہو جائے گا کیونکہ پھر ہم مخرج میں ہی رہ کر اس کو پڑھتے ہیں جوڑ کرنے کے لیے اس کو ہم کرتے ہیں
जो उसका कलकला होता है वो आवाज निकलती है, अगर किसी की सिफत में ऐसा हो जैसे ता है और काफ है, तो उनको हटाते हैं आखिर में। तो फिर आगे कहते हैं लेकिन जब ये इकट्ठा पढ़े जाएगा तो फिर इसका कलकला वगैरह दूर हो जाएगा। अच्छा, हमजा जबर तो जजम अत तौपिस्तु अत 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 तापिस्तु तु अत तापिस्तु हाँ जी तौपिस्तु अत तू तापिस्तु हम हाँ जी जब हमजा तो जबर पेश तू तू के लिए भी तू जब कहेंगे ना तो तब भी होंठ मुकम्मल गोल हों, क्यों? हाँ तो जी पेश तू तू पेश के तू लिए होंठ मुकम्मल गोल होते हैं ना। हाँ जी हाँ इसीलिए जी। अच्छा आगे है हमजा जबर जाल जाल जा जजम जा जा जाल जाल जजम नहीं अब जाल नहीं है, जा जा है जा। तुम्हें वो निकाल रही हूँ बात जुबान को उठा भी नहीं मगर नहीं सही निकल अज हमजा जबर जो जो जजम अज हम्म, जो 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 अज, अज जो हम्म, हमजा जबर जो हमजा जजम जी अज नहीं हमजा ये मुझे अभी वो कर रही हमजा जबर मैं जा पढ़ती हूँ हाँ जजम अज जा हाँ जा जाजेर जजम जी ये मैं भूल गई थी हाँ हाँ ठीक है जो जजम जा ये जी अज जी अज अजी जी हाँ जी अजी इसको अज कहाँ है, इसका मखरज कहाँ से है, ये किधर लगती है? जुबान को ना इधर लगाना है नीचे वाले दांतों के दरमियान तो दो दांतों के दरमियान अज नहीं नहीं नहीं, इसको कहाँ ऊपर लगते हैं, ऊपर वाले दो ऊपर वाले दांतों के फिर आया आगे सिरे से जाके लगता है। अच्छा जुबान ऊपर की नोक ऊपर ऊपर वाले अज फिर अज आया उठ के जो दो अच्छा दांत हैं उनके हाँ सिरे वो मैं से भूल गई लगती है। मैं जरा नहीं थी क्लास में ना तो मैं खुद भी नहीं जी नहीं तो मैं रोजाना मखरत तो मैं रोजाना पढ़ती हूँ अपने कोशिश होती है कि देखूं ये मुझे अच्छी तरह याद हो जाए अल्लाह करे हमजा जबर जौ जजम जौ पेश जू अज हमजा जबर जा हाँ अच्छा जजम तुमको अज। मिलाना था हाँ हम्म, हमजा क्या हमजा जजम हमजा हमजा जबर जा जजम जबर अज हमजा जा जबर पेशदू जा जजम अज। अज जा पेजू अज जू अज जू नहीं करना, ये जेड नहीं है, अज ये जा अच्छा नहीं है, अज ठीक है। अज जा वाली जा होगी तो जू हाँ होगा। वो जुबान की जब वो उठाती हूँ तो फिर मैं सही बात आ रही अज जू नहीं होगी, अज नोक अज नोक बनाई है ना हाँ ऊपर की तरफ उठानी है ना अज अज हाँ अब सही हुआ है ऊपर मेरा की ख्याल तरफ ऊपर वाले दो दांतों की हाँ सिरे से लगती है, जब आप ठीक, नोक पे कहें अज तो, जू लेकिन मुंह गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी अज अज जू अज अज जू अब सही हुआ हम्म, ये है हम कि जजाकिल्लाह खैरन कसीरा, ये क्योंकि हम जोड़ से पढ़ते नहीं है वहां, वरना तो बहुत आसान है, अस्सा अस्सी अस्सू है ना, हाँ जी कितना आसान है जी कहना, अद्दा अद्दी अद्दू, हाँ जी बहुत हाँ आसान है। लेकिन जब आगे भी पढ़ाना है, जब वो बच्चा ही कोई कह दे कि हाँ आपको जोड़ करके मुझे बताएं, तो आप कैसे बता सकते हैं जब हाँ फिर पता वो ही नहीं होगा ना। हमें जज्म का बताना ये पड़ेगा ना जब तक आपको जोड़ करके नहीं पढ़ेंगे ना इसको, तब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इसमें दो हरूफ हैं और पहले वाला जज्म वाला है, उसकी आवाज पहले पढ़ी जाएगी, पहले उसके जैसे ये हमजा है इसकी जबर पढ़ के पहले हमजा कहना है, तो फिर हाँ जो भी जी है पहले हमजा कहना है, फिर जबर कहनी है, फिर आगे वाला हर्फ कहना है जो पहला है छुपा हुआ, और जज्म उसकी फिर जज्म कहनी है। तो फिर इनकी आवाज लानी है। तो जो हरकत वाला यानी जबर जेर पेश वाला जो आखिरी हर्फ है उसको बाद में उसको अलहदा ही पढ़ना, जैसे जबर हाँ जेर जी पेश वाला हर्फ पढ़ा जाता है, इस हम्म तरह पढ़ना है, ठीक है।
तो ठीक है, इंशाल्लाह बाकी प्रैक्टिस बाकी की फिर रहने देते हैं, क्योंकि बहनों ने जिसने पढ़ना था पढ़ लिया है। तो हरकत के बाद वाओ अगर आ जाती है, जा या आती है, क्योंकि जैसे या है, जहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को तो थोड़ा-सा आपको पता हो जाए। पहले तो अगर सारा पढ़ते रहें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जहाँ पे देखें अम है, मेरा ख़्याल पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये कुछ कलकला वाले हैं और इसकी कुछ और सिफ़ात हैं और इसमें तशदीद पाई जाती है, इनमें भी यानी इनमें गुन्ना काफ़ी पाया जाता है, अकमल गुन्ना, तो इसमें नबर होता है, इसमें भी नबर होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग पढ़ लें। इंशाल्लाह कौन बहन अमीना बहन आप पढ़ना चाहती हैं, और कौन-कौन बहन है? फरज़ाना बहन, अम इमामुद्दीन अंसारी बहन है कोई, और सीमा बहन है। कौन पढ़ना पढ़ना चाहता है? अगर किसी ने पढ़ना है तो जल्दी से पढ़ लें। जो पढ़ेगा ना उसके लिए ये आसान हो जाएगा, जो शर्माएगा उसके लिए फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसको पढ़ें प्लीज। ये थर्ड लाइन पढ़नी है ना? जी जी वाली, हमजा आइन जबर, वाली। हमजा जबर, ऐन, ऐन जबर आ, आ, हमजा जबर आइन जज़म आ, है ना? आ, आ, आ। आइन को हमजा बारीक ही रखना है लेकिन ऐन जबर आ, हमजा जबर, हमजा जज़म, ऐन, ऐन, ऐन जज़म, ऐन ज़ेर ई, अल, नहीं, हमजा जबर आइन जज़म आइन ज़ेर ई आई, इसका तो है ना? इस नहीं तरह है। पढ़ना है ना, आई आ आ ई आ ई। ये मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही आवाज जो है आइन की वैसे भी मुश्किल होता है जज़म वाला आइन निकालना, है ना? जी क्योंकि ई जो है, ये ई अगर हो गया, ई हो गया तो जे हो जाएगा, ठीक है? ई जी, तो ये तो नहीं है, लफ्ज हरफ ही अलहदा है ना। तो जी इसको बहुत गौर से पढ़ना है। हमजा जबर आइन जज़म आइन जबर आ आ आ आ। इस तरह हमजा जबर आइन जज़म आइन ज़ेर ई हमजा जबर आइन जज़म आइन पेश आइन पेश नहीं पढ़ना, वरना जी हो जाएगा हमजा, ठीक है? ऊ ऊ आ ऊ, ठीक आ, है? क्योंकि शुरू तो इसको करें। निकालना ना आपने ठीक गले से दरमियान से, तो फिर जी गड़बड़ हो जाएगी। हमजा जबर, ऐन जबर, हमजा जज़म, ऐन जबर, हम आ आ, ऐन जबर नहीं, आ, नहीं, तो फिर आप यही पढ़े हमजा जबर बस, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मुश्किल तो तब आ, होती है जब आइन जज़म वाला भी साथ में उसकी आवाज निकालें तो। हमजा जज़म, ऐन ज़ेर, ऐन ऐन ज़ेर ई, आ, ई, हमजा जबर आइन जज़म आइन ज़ेर आ ई। आ, हमजा जज़म, ऐन, ऐन जज़म, ऐन ज़ेर ई, आ, ई। अच्छा, मैं रेकमेंड करूँगी सभी बहनों को कि जो पास में कोई मदरसा है, कोई भी पढ़ाने वाला है ना, उसके सामने बैठ के जाके उनको ये सुनाएँ। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि आपके किस तरह मुँह हो रहा है, किस तरह हर्फ अदा हो रहे हैं, ठीक है? कई दफ़ा कंप्यूटर में सुनने में आवाज़ और आ सकती है, ठीक है? हमजा जज़म, किसी को सुनाएँ ऐन इनको। जज़म, ऐन पेश ऊ, हमज़ा ज़बर, मैंने बताया ना, पहले पहले आप जज़्म में नहीं जाएँगे। हमज़ा जज़्म कैसे आप कह सकते हैं? हमज़ा के ऊपर तो ज़बर है। अच्छा हुँ, हमज़ा के ऊपर ज़बर आएगी। पहले हमज़ा कहेंगे, फिर ज़बर कहेंगे आ हो जाता है ना? लेकिन हमज़ा ज़बर आइन जज़्म, क्योंकि ये हमने जो जी ज़बर वाला लिखा था, इसको पहले आप पढ़ेंगे। ये जो है
ये बाजी दूसरा आ गया। जे जो है इसको आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है? जे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? जी नहीं, मैंने वो लिखा था ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अब पढ़ें, गैन वाला पढ़ें। हमजा जबर आइन जज़म गैन जबर गा गैन अग़ा वाला पढ़ें, गैन वाला पढ़ें। गैन जबर गा हमजा जबर आइन, गैन जज़म अग, जहाँ पे होल्ड करके रखना है, आग, गैन जबर आग गा नहीं, आग होल्ड रखना है, गैन जबर गा, आगा, हमजा जबर गा, गैन जज़म क्योंकि गैन मोटा हर्फ भी है ना, आगा। गैन जबर गा अग़ा हमजा जबर गैन छोड़ते नहीं जज़म होते हैं इसकी आवाज को, गैन ज़ेर होल्ड गी करके रखते हैं। अग़ी हमजा जबर गैन जज़म गैन पेश गू अग़ू सही है हमजा बाजी जबर गैन जज़म आग, गैन पेश हूँ, आग, हमजा हमजा जबर जबर गैन जज़म आग, गैन पेश हूँ, आग। हमजा जबर गैन अच्छा, जज़म अगर मैं आप लोगों को दूसरा तरीका दूं तो वो आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूँ हमजा जबर या अलिफ में ले देती हूँ आपके लिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये हमजा है, ठीक है? अलिफ नहीं है, ठीक है? जब भी अलिफ जो है, अलिफ तब रहता है जब वो खाली होता है। यूं ही उसके ऊपर कोई चीज आ जाती है तो वो हमजा बन जाता है, वो आपने याद करना है, ठीक है? जी ठीक है सभी ने? जी जी ये जहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको कि अलिफ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में, अलिफ जी जबर फा जज़म, अगर मैं इस तरह की बजाय कहूँ अलिफ जबर फा शाद अफ, फा जबर फा अफ़ा, अलिफ जबर फा शाद अफ, फा ज़ेर फी, अफ़ी, अलिफ जबर अलिफ जबर फा शाद अफ, फा पेश फू, अफ़ू। क्या ये आसान है आप लोगों के लिए? पहले की निस्बत आसान है? अगर बाजी हम इसको इस तरह पढ़ें हमजा अगर फा आसान जबर है तो अफ हम ऐसे पढ़ लेते फा हैं। जबर फा अगर इस तरह पढ़ें हमजा फा जबर अफ फा जबर फा अफ़ा इस तरह पढ़ सकते हैं हमजा फा जबर, हमजा फा जबर अफ। फा जबर चलो फा आप इस तरह पढ़ लें, लेकिन पहले पहले जो हर्फ होता है ना, ये जी देखिए, जे एक घर से गुजर के आप दूसरे की तरफ जाते हैं ना, क्या जी आप दोनों घरों के ऊपर दो टांगे रख के बाद में उसको जंप करते हैं, कि एक घर से एक टांग रख के उसे फलांग के फिर दूसरी की तरफ आते हैं? यानी कि अलिफ के ऊपर जो जबर है वो उसका पूरा हक पहले अदा किया जाएगा। इसके पढ़ने के दो तरीकों में से यही दो हैं, वो तीसरा जो आप बता रहे हैं वो नहीं है, ठीक है? अच्छा जी क्योंकि कुरान अपने तरीकों से नहीं पढ़ा जाता, जी जी ठीक है? क्यों? क्योंकि जो उसकी हरकत है पहले उसकी हरकत का हक अदा करेंगे। उस क्योंकि अगर आप ऐसे कर जाएं तो ये फिर जो उसका कितना उसको लंबा करना है या छोटा रखना, वो आप कैसे कर सकते हैं ना? आप तो आगे बढ़ गए। तो बाजी ये फा वाला जो है ये शद वाला है तो इसको हम अलिफ से हमजा से मिलाएंगे ना हमजा, हमजा जबर फा जज़म अफ, फा जबर फा, हमजा जबर फा जज़म अफ, फा ज़ेर फी, अच्छा ठीक है? हमजा जबर फा जज़म अफ, फा पेश फू, अफ़ू, ठीक है? सही जी जो इसका असल अंदर है ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि वो ना आपको भूले। अगर मैं शद वाला, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया दूसरा तरीका भी, अगर मैं वो बताऊं तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि शद के नीचे दो हर्फ होते हैं, डबल हर्फ है, जी ठीक है? जी जैसे जी हमने तनवीन पढ़ी थी कि तनवीन के डबल हरकत होती है, तो ये डबल हर्फ है, ठीक है? शद के जी नीचे डबल हर्फ होता है, दो हरूफ जी होते हैं एक जैसे ही। जहाँ पे काफ को पढ़े, हमजा जबर ऑफ जज़म
قاف زبر قا ना नहीं, आप इसका कलकला قا करें पहले, वो आप नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं आपको अक्कु समझ उस बात की आ रही। قا अक्कु हमजा जबर काफ जज्म अक, हमजा जबर का قاف जज़म अक अक काफ अक जबर का, قاف زبر قا अक अक्का قا अक हमजा अक्का, हमजा लंबा नहीं, जबर आखिर में खींचना नहीं है इनको, क्योंकि जे आगे अगर कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हमजा जफर हमजा जबर قاف जज़म अक्की अक قاف नहीं, जे आप अक फिर वही कर गए हैं। हमजा जबर काफ जज्म अक, काफ जेर की, अक्की। हमजा जबर قاف जज़म अक قاف زیر قی हम्म, अक्की हमजा जबर قاف जज़म अक قاف पेश कू अक्कू अक्कू, बस अक्कू नहीं करना। कू अक्कू करेंगे तो फिर वाव आगे जज्म वाली ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसको नहीं, मद लेटर नहीं बनाना इसको, क्योंकि अक्कू इस वक्त आपके सामने मद लेटर नहीं है। ठीक है, जी ठीक, और पढ़ो नहीं नहीं ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब और कोई बहन पढ़ना चाहती है कि नहीं पढ़ना? 2 बहनों ने पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो, वरना मैं इसको बंद कर दूं, फिर खत्म कर दूं। सब ठीक है कि मैं चूज कर लूं अब बहनों को? जब मैं चूज करूंगी तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। सिस्टर मैं ट्राई करूँ अस्सलाम पढ़ने? वालेकुम, मैं पढ़ूं? कर दें, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लें, जो भी बहन पढ़ना चाहती है जल्दी से। हम्म। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या औज़ु क्या बिल्लाहि पढ़ना है? मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह, ठीक है। अलिफ हमजा अलिफ आप अलिफ ही कह सकते हैं, अगर आपकी जुबानी अलिफ चढ़ा हुआ है तो ठीक है, अलिफ कह ले। हमजा अलिफ काफ शद अक अक अलिफ जबर काफ जज्म अक, अलिफ जबर काफ जज़म अक अक काफ अक जबर का, काफ जबर का अक अक्का, अक्का जे अक्का नरम, जे अक हर्फ है बारीक है, ठीक है, जी अक्का। अक्का जब इसके ऊपर जज्म वाला पढ़ेंगे ना हम, तो इसकी जी एक सिफत है कि जे इजहार के बाद जे क्या है, अम, अच्छा आपने सिफात अभी नहीं सभी बहनों ने पढ़ी, तो इसके लिए मैं रहने देती हूँ। ठीक है, आप पढ़ें। अलिफ जबर काफ अलिफ जज्म अक, अलिफ जबर काफ जज़म अक कापिश काफ अक, जबर अक्का अक अलिफ अक जबर काफ जज्म अक, अलिफ जबर काफ जज़म अक अक। अक हाँ, आगे ऐसे की आवाज आती है, अक, अक हाफजेर, काफजेर की। ठीक है, काफ आगे वाला। अलिफ जबर काफ जज़म अक अक काफ जेर की अक्की इसका भी आपने कलकला करना सीखना है, ठीक है। अक्की हाँ, अलिफ जबर अक, हाँ, अलिफ ठीक है, जबर पढ़े आगे। काफ जज़म कापिशकु अक्कू आ, अलिफ जबर काफ जज्म अक, अक काफ पेशकू। कापिशकु अक्कू हम्म, अलिफ जज़म लाम अलिफ 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 जबर लाम जज़म अ अल हम्म। लाम जबर अल लाम जबर ला, लाम जबर अल्लाह लाम जबर ला, ला लाम की भी जबर ला आवाज पूरी आएगी। लाम उसकी जबर जितनी ला हरकत की आवाज है, वो हरकत की आवाज भी पूरी आएगी, एक जी हर्फ के बराबर, एक हरकत के बराबर। जी अल्लाह अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह
अल्लाह ये अल्लाह बारीक रहेगा, अल्लाह अल्लाह नहीं होगा, क्योंकि ये मोटा हो जी गया ना, तो जी सिर्फ इसमें जलाला अल्लाह का नाम ही, उसमें लाम जो पढ़ा जाता है वो ही मोटा होता है और किसी में नहीं। अलिफ ज़बर काफ जज़म अक हम्म, लाम ज़ेर ली अक अल्ली अल्ली। अल्ली हम्म, अलिफ जज़म अलिफ जबर अलिफ ज़बर सॉरी अलिफ ज़बर नून जज़म लाम लाम जज़म लाम पेश लू अल लू अलिफ जबर लाम जज्म अल अब ये लाम जो है ना जज्म वाला, इसको मखरज में रखना है, अल नहीं करेंगे, ठीक है, ना अन करेंगे ना अल करेंगे, इसके अल मखरज से बाहर नहीं आना। जैसे मैंने दौद के मखरज से बाहर आने के जी लिए आपको रोका था ना, जी ना अस भी नहीं करना, स्वाद जो है दौद जी के मखरज में रहना है, यानी कि जितने हरूफ कलकला है जी उनके अलावा जितने हरूफ आएंगे उनके मखरज में ही रहा जाएगा, यानी कि जुबान जो भी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है उधर ही रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं उसके हिस्से को। अल लेकिन कोई हरूफ हैं जिनके लिए छोड़ा जाता है, जैसे काफ है, तो जी ये दुआ है, और पीछे को हरूफ हैं 5 हैं ऑल टुगेदर इंशाल्लाह, उनको कुतुबुज्जद्दीन कहते हैं। तो वो जो हरूफ है इंशाल्लाह ताला जिधर जिधर आते हैं, जहाँ पे काफ के ऊपर आया, तौ के ऊपर आया, और पीछे जो गुजर चुके हैं उधर। ठीक है, आगे पढ़ें। अलिफ ज़बर और वैसे एक एक लाइन सभी बहनें जो जो रह गई हैं पढ़ लें तो जल्दी हो जाएगी, और आप अलिफ लोगों को ज़बर हिस्सा भी मीम पड़ जाएगा आपका। अलिफ ज़बर मीम जज़म अम मीम हम्म, ज़बर अम्मा मीम जबर मा, मीम ज़बर मा अम्मा अम्मा, अम्मा इसका अकमल गुन्ना होता है, कामल से भी जी ज्यादा। कामिल अम अम्मा अम मा, अम्मा अम्मा, अम्मा अम्मा, जब शाद के अम्मा अम्मा। अम्मा हम्म, अलिफ ये ज़बर मीम जी मुशद्दद और नून मुशद्दद जो है, इनके ऊपर अकमल गुन्ना होता है, अकमल ठीक है। करना हम्म, जी अलिफ ज़बर मीम मीम जज़म अम्मी अम मीम न अम अम, मीम अम जेर मी। मीम ज़ेर मी अम्मी हम्म, अलिफ ज़बर मीम जज़म अम मीम पेशमू अम्मू हम्म, हा अलिफ ठीक है। ज़बर हा जज़म हा हाँ क्यों है, मीम पढ़ रहे थे ना आप ये। सॉरी सॉरी मैं देखा नहीं आ, ये तो वो तो हो गया था ना अन हम्म, अलिफ ज़बर नून जज़म अब अन इसका भी अकमल गुन्ना है, ठीक है, जी अन गुन्ने की मिकदार फुल होनी चाहिए इसकी। अलिफ ज़बर नून जज़म अन नून ज़बर ना अन्ना अलिफ अन्न अन्ना अन्न। अन्ना हम्म, अलिफ जज़म नून अलिफ ज़बर नून जज़म नून ज़ेनी नहीं अन्नी नहीं अन नहीं, नहीं अलिफ वो है जबर नून जज्म अन, अब नो अन नहीं कह के गए। अन जी हम्म, अन अलिफ ज़बर नून जज़म अन नून जे नून जे नी अन्नी 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 अन्नी। अन्नी अगर नी बिल्कुल छोटा रखेंगे तो वो हरकत का भी हक अदा नहीं होगा, और जी ना इसको अन्नी कर सकते हैं, और ना अन्नी अन्नी ऐसे नहीं कर सकते। अन्नी 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 अन्नी, अन्नी बस इतना। ठीक है, जी आगे। अलिफ ज़बर नून जज़म नून पेश नू ना अन ना, अलिफ सॉरी सॉरी जबर नून अन जज्म अन अन, जी अन अलिफ ज़बर नून जज़म अन 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 नून पेश नू अन्नु नु नहीं, झटका नहीं देना। नहीं झटका पता अन्नु क्यों आया है जी आपको, जी क्योंकि आपने बहुत जल्दी हरकत को जी कम किया जी है। जी जी सॉरी सॉरी अन्नु ठीक, अन्नु
बस अन्नू। ठीक है। सीमा बहन आप पढ़ेंगे आगे वाली लाइन जल्दी से? जी, अलिफ जबर नहीं आपने पढ़ी है सऊदिया, आप पढ़ के है, खत्म किया है। अमीना बहन आप पढ़ेंगे? फरजाना बहन ने पढ़ लिया है। इमामुद्दीन अंसारी बहन आप पढ़ेंगे? शहनाज बहन है ना आप? जी बाजी, मैं शहनाज हूँ, वो मेरे आदमी हाँ के नाम से है ना हाँ बाजी। जी, कोई बात नहीं, मैं पहचान लिया आपको। पढ़े आप? जी बाजी। ये मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए और भी, जी, ठीक है। अस्सलाम आपको वालेकुम अच्छी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी तरह कहाँ से पढ़ूं बाजी? ये वाव थोड़ा से, सा और ऊपर कर दें। वाव वाव से से, पढ़ूं? वाव से पढ़ूं? वाव से हाँ। जी। हमजा वाव जबर हमजा जबर, हमजा हम, जबर, हमजा जबर वाव जज्म, वाव जजम अब जहां पे आव सख्ती होगी, जय नबर कहते हैं इसको, बहुत सख्ती से मारेंगे तो वाव की आवाज निकलेगी, क्योंकि वाव जो पहला है ना आउ, वो आउ बारीक है, वो सॉरी, वो आउ, हमजा जबर वाव जज्म आउ, वा हम जबर वा, जबर वाव वा। जजम औ और वाव के लिए भी होंठ गोल होने चाहिए। वाव जबर वा औ वा आउ, आउ पहले है ना, औ आउ मदलीन है ना, जी मदलीन बनती है पहले इसकी, तो फिर औ हरकत वाला वा, औ आउ वा। जबर वा औ तो वा। अब क्योंकि मैं ये बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप इसको सख्ती से हिट नहीं करेंगे तो औ हो जाएगा, ठीक है। हाँ मदलीन इसकी बनती है ऑटोमेटिकली, तो वो बन जाएगी, तो उसमें औ औ फिर औ उसकी अब औआ औआ आप कहेंगे तो ये तो नहीं बनेगी ना, औआ तो कोई वाव तो आई औ। नहीं इसमें, अच्छा क्योंकि औ जज़्म वाली वा जो है वो औ हो जाएगी। तो इसलिए आपको जहाँ पे कहते हैं कि फिर तजवीद वाले कहते हैं कि जहाँ पे आपको नबर करनी पड़ेगी, जैन के सख्ती के साथ मारना पड़ेगा। तो इसी तरह ही ये या जो है इसके साथ भी यही होता है, वाव और या कमजोर है, ठीक है। अच्छा औ औ पढ़ेंगे ना बाजी? औ हमजा जबर वाव जज़्म आउ, इसको होल्ड करके रखिए, हमजा आउ, जबर वाव वाव जजम जबर वा। औ वाव वाव जबर वा औ वा। हाँ, क्योंकि अगर हमजा आप औ कह देंगे तो आप एक किस्म के मखरज से बाहर आ गए हैं, उसके होंठ जो है वो ठीक है हमजा पढ़े। जबर हमजा जबर वाव जेर वाव जजम जेर वी नहीं नहीं नहीं, औ आप वाओ जज़म जेर नहीं कहेंगे। हमजा जबर वाओ जज़म आउ, वा हम जेर वी, आउ हमजा वी, जबर हमजा जबर वाव जजम आउ। औ वाव जेर वी औ। हाँ। हम्म। हमजा जबर वाव जजम औ वू वाव पेश वू औ औ वू। ओके, आगे। हा हमजा जबर हा जजम जेर जबर नहीं 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 नहीं, हमजा जबर हा जज़म का पहले करें। हमजा जबर हा जजम हा आह, आह, आ आ आह, हा हा जबर जबर हा, आ आ हा आह हा। आ हा। ओके, आगे। हमजा जबर अ, हा जजम जे हमजा हा जेर ही आ ही। हमजा जबर अ, हा जजम पेश नहीं नहीं नहीं, आप वो ही पढ़ रहे हैं, फिर भी आप अलग-अलग इनको नहीं कर रहे। हमज़ा ज़बर अ, हा जज़्म आह, हाज़िर ही, आह ही। हमज़ा ज़बर हा जज़्म आह, हा हा पेश हू, आह हाजिर हू। हाजिर ही आ ही। हमजा जबर हा जजम जेर ही नहीं हाजिर आप ही। वो इसको तोड़े ना, तोड़े, इनकी आवाज़ को अलग-अलग करें। आप इकट्ठा ही हमजा बाद जबर में एक आवाज़ हमजा निकालते जबर हैं बस। हाजिर ही पढ़ेंगे ना, हाजिर ही। हरकत वाला तो आप ठीक पढ़ते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जज्म वाले में प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी आवाज नहीं आप लाते। हा हा जजम देर ही ही हा देर ही ही आ हा जबर सॉरी अलिफ जबर देर हा ही जज्म हा पेश हु आ आ आ हमजा जबर हा हा जजम पेश हु हा पेश हु नहीं हमजा जबर हा जबर हा जजम पेश हु हा पेश हु नहीं हु नहीं आप बहुत मुश्किल अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप ना सोच यानी सुनते रहे दूसरा का किस तरह सुनाते हैं। आप इसको असल में कर रहे हैं, सारा अलहदा अलहदा इसको कर रहे हैं, ठीक है। आप सारा अलहदा अलहदा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपने अपनी बेटी से सुना जहाँ किसी से पढ़ते रहें, कोई भी साथ में हो, कोई भी नजदीक हो तो उससे उसे सुनाएं। मदरसा कोई है नजदीक तो उसको सुनाएं, ठीक है। वो आपको बता देंगे क्या करना है। वैसे तो आपको, आप अगर इसकी ऑडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो कि आपकी दूसरे है ना कैसे ऑडियो, पढ़े। आप भेजेंगे ना? ये भेजेंगे इंशाल्लाह में, तो फिर उसको सुनते रहें बार बार तो आपको जी पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक ये लाइन रहती है, ठीक है जी। अब आखिरी लाइन है, कौन बहन पढ़ेगी? जल्दी से पढ़ ले, जिस बहन ने भी पढ़नी है, आखिरी लाइन है। ठीक है, बाजी मैं पढ़ूं? पढ़ें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हमजा जबर एंड हमजा जज़म। हमजा जबर आइन जज़म, सॉरी हमजा हमजा जबर हमजा जज़म, हाँ जी। आ आ हमजा आ जबर आ जहाँ पे झटका लगेगा, जहाँ पे आ झटका लगाए, हमजा जबर आइन आइन में बार बार कह रही, हमजा जबर हमजा जज़म आ आ आ झटका आ लगेगा सख्ती के साथ। झटका क्या होता है कि आप मखरज में जब उसके जाते हैं, जब जज़म के लिए हर्फ के मखरज में जाया जाता है, जहाँ से वो निकलता होता है ना, उसकी उसमें जाके ठहरा जाता है, जब बाहर निकला जाता है। ज़बर ज़ेर पेश के लिए क्या होता है, उस मखरज से हर्फ की आवाज को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखें बात सारी बहनें। जब जज़म वाला हर्फ होता है तो वो मखरज की तरफ लौटता है सुकून हासिल करने के लिए। हम सारा दिन आराम करते हैं तो घर में क्या शाम को लौटते हैं ना, जी सुकून हासिल करने के लिए। तो साकिन जो हर्फ होता है उसको सुकून चाहिए, उसने रुकना होता है आके, तो वो फिर अपने घर की तरफ लौटता है। बस इतना याद रखें। मैं मिसाल इसकी और इससे बढ़कर नहीं दे सकती, हम सब इस मिसाल को जानते हैं ना, जी कि इंसान अपने घर की तरफ लौटता है ना शाम को, जब भी आराम उसने करना होता है अपने घर में जाके करता है। जी बाहर कहीं भी ये लेट के तो नहीं आराम कर लेता ना। जी सुकून लेना हो तो वो उधर रुक जाता है, जहाँ कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उसको सुकून आ जाए। जी तो ये फिर हमजा जो है, हमजा जब भी जज़म के साथ आएगा उसको झटका लगेगा, यानी कि उसके मखरज में जब वो पहुंचेगा तो एकदम बहुत तेजी के साथ आवाज जाके तो एकदम रुक जाएगी। तो जब रुक जाती है, जब आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं कार को, तो क्या होता है, झटका लगता है कार को, जी जी लगता है ना। जी कोई हाँ चीज आगे आ जाए, एकदम ब्रेक लगाई तो क्या होता है, झटका जी लगता है। तो ये यही होता है इसका, ये इमरजेंसी ब्रेक ही समझ लें इसको लगाई है। हमजा जबर हमजा जज़म आ हमजा जबर हमजा जबर जज़म आ, जहाँ पे ये देखे आइन की आवाज मैंने निकाली, पहले पहले निकाली ना, जी अब मैं हमजा की आवाज मैंने पहली निकाली। तो इसमें फर्क आपने करना है, उसको सुने अपने आप को कि क्या फर्क है, ठीक है। हमजा जबर हमजा जज़म आ, ठीक है। नहीं करना, गलत हो जाएगा, आइन बन जाएगा। हमजा जबर आ आ आ आ आ
जहाँ पे झटका लगा ना फिर आ। हमजा जबर, हमजा जज्म, ये मैं क्या देती हूँ, हमजा जबर, हमजा जज्म आ, हमजा जेर ई, आ आ, ऐसे आ ई। अगर कर देता तो वो भी कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमजा जबर, हमजा जज्म आ, हमजा पेश ऊ, आ ऊ, आ आ आ ई आ ऊ, आ आ आ ई आ ऊ। एक एक आपको जब मैं रोकती हूँ तो आवाज सुनाई देती है ना, जी जी वो सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दी तो गलत हो जाएगा। जैसे ये है आउ वा, आउ वी, आउ वू। अगर आउ वा कहेंगे, आउ वा, आउ वी, आउ वू, तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि वाव के ऊपर नबर होती है, ठीक है। सख्ती से हिट करेंगे तो वाव की आवाज आएगी, वरना मदलीन पढ़ के आगे आप अलहदा अलहदा इन दोनों हरूफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नबर ना की, सख्ती से हिट ना किया, तो फिर आप मादलीन पढ़ रहे हैं और फिर हरकत वाला हर्फ पढ़ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। तो ये फिर जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो एक वाव जज़म वाली है ना, तो उसकी आवाज जो है वो नहीं आएगी, फिर औ की आ जाएगी बस। तो आगे हाँ या है, या पे भी नबर होती है। हमजा जबर, हमजा जबर, या जज़म आ, सॉरी आई, या जबर या, आई, हमजा जबर, या जज़म आई, आई हो जाता है। हमजा हमजा जबर या जज़म आई, या जेर ही, आई 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 जो होता है ना, इस पे थोड़ा सा आपको या की, वरना आई हो जाएगा, मदलीन हो जाएगा। ये दोनों वाव और या में मदलीन हो जाते हैं, ठीक है। इनकी आवाज बहुत नरम होके उनको गायब करके या की और वाव की आवाज को वो गायब कर देती है, ठीक है। मदलीन जो है उनकी आवाज को गायब कर देती है और पहले हर्फ की आवाज को निकालती है वो फिर। और गुलाई की तरफ मुंह जा जिस तरह भी जाता है, स्माइल की तरफ या के लिए आई स्माइल की तरफ जाता है और वाव के लिए होंठों की गुलाई की तरफ जाता है, तो खत्म कर देती है आवाज को। तो ऐसे हमने नहीं करना। हमजा जबर या जज्म आई, या पेश यू, आई यू। इस आई जू भी नहीं करना। अगर आई जू कर दोगे तो जू जीम होती है, ठीक है। वो आप फिर हमने पढ़ा था ना उसका मखरज के आप तालू से लगा देंगे जाके जुबान के दरमियानी हिस्से को। अगर आप या में भी नबर प्रॉपरली ना की और जीम पढ़ दी आखिर में, अज्जू अज्जू जू जू पढ़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आइया, आई, आईयू। नबर तो करनी है लेकिन या को नरम ही रखना है क्योंकि ये नरम हर्फ है और ये अपने मखरज के साथ जुड़ता नहीं है जाके, क्योंकि इसका मखरज क्या है, जुड़ना नहीं है तालू से, बल्कि तालू की तरफ उठना है, ठीक है। तालू की तरफ उठना है, तालू से जाके जुड़ना नहीं है। जीम का मखरज तालू से जाके जुड़ता है, चिपकता है जाके, ठीक है। तो इनको याद रखना है इंशाल्लाह। जो भी पॉइंट है इनको आप कवर करें। तो जहाँ पे हरकत के बाद जो मैंने शायद सारे गुण गिन लिए हूँ, लेकिन फिर भी हरकत के बाद वाव या मुशद्दद आ जाए तो इन्हें बगैर गुन्ना के सख्ती से अदा करेंगे, जो अभी मैंने बताया है नबर करेंगे। जैसे जुव्विजत, जुव्विजत क़य्यिमत। अगर आप क़य्यिमत क़य्यिमत करेंगे या जुव्विजत जुव्विजत या क़य्यिमत तो नहीं होगी ना नबर फिर। तो ये फिर ऐसे इसको ठीक नहीं ये अदा होगा। अगर वाव और या गुन्ना वाले हूँ, अगर वाव और या गुन्ना वाले हूँ, मैं यक़ूल गुन्ना वाले क्या होते हैं, वाव या जे इदगाम के आए हुए हूँ, उनसे पहले तनवीन या नून सुकून हूँ, ठीक है, खास का नून सुकून। मैं यक़ूलु मिम वालिन, तो वहां पे गुन्ना नहीं तो वहां गुन्ना कराइए।
ठीक है, गुन्ना करेंगे। क्या? मैया, ये है ना गुन्ना, मैया, मैया। मिमवालिन, मिमवा, मिमवा। ठीक है, जहाँ पे गुन्ना हम करेंगे मिमवा, जो नाक में जनी आवाज जाके छुपाएंगे, लेकिन नबर पे आवाज छुप रही थी, नाक में नहीं छुप रही थी ना, नाक की तरफ और ये जाने वाले हर्फ ही नहीं है। तो लेकिन इधर देखें आप कि ये वाव जैसे शब्द वाली ऐसे आ जाएगी, और उससे पहले आप लिख लें, उससे पहले क्या है, तनवीन या नून सुकून होगा। ठीक है, तनवीन, तो खास कर नून सुकून आप लें जब वाव या या गुनने वाले हूँ, यानी अम, इदगाम वाले हूँ, आप इदगाम वाले लिख दें, इदगाम वाले हूँ तो वहां गुन्ना करेंगे। ठीक है, हरफ़े मद के बाद ये शे है, हरफ़े मद के बाद अगर मुशद्दद हर्फ आए तो मद करना लाजमी है। क्या है? हरफ़े मद के बाद, हरफ़े मद क्या होता है? अलिफ, वाओ और शुद्ध या। हरफ़े मद के बाद अगर मुशद्दद हर्फ आ जाए, शद वाला हर्फ आ जाए, क्योंकि पहले या आई और फिर शद वाला हर्फ आ गया, या पहले अलिफ आया तो शद वाला हर्फ आगे आ गया, या फिर पहले वाव आई तो शद वाला हर्फ आ गया, तो मद करना लाजमी है। क्या? जहां पे क्या होगा, अब फौरन ही कफ्फा तन नहीं पढ़ेंगे, हज्जा तन नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। अब इसके ऊपर लाजमी है कि आप मद करें, क्योंकि जहां पे क्या है, मद्दे, मुतसिल मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल हो रही है, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल हो रही है, शद आ गया है। ठीक है, ये याद रखना है। मुतसिल लाजम है ना पाजी? मुत्सिल क्यों है, वो तो हमजा आता है आगे, तो हमजा तो नहीं, ये तो फा तो जीम है। जी मद्दे मुत्सिल से तो नहीं आप मिलाएंगे ना इसको, ये जी मिक्स ना करें। ये जी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है, मुसक्कल हमने शद के साथ पढ़ी ये हुई है शद के साथ हो पहले, हाँ जी लेकिन मद्दे फिर मैं लाजम बताती हूँ कि मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है, लाजमी मद है, करनी ही करनी है। कफ्फा तन पढ़ के, हज्जा तन पढ़ के आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये लाजमी मद है। ठीक है, तो मुसक्कल इसलिए है, मुसक्कल शकील से है, यानी कि भारी, भारी मद है। जी 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 कैफतन अच्छा हज्जतू। ठीक है, इस तरह आपने पढ़ना है इसके। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल की कितने लंबाई होती है? 6 हरूफ, पाँच छे हरकत, होती है सॉरी, 6 छह हरकत, हरकत होती है हरकत हाँ जी 6 जी हरकत होती है। मुशद्दद हर्फ पर वक़्फ़ एहतियात से करें और कलकला ना होने दें। कलकला मैंने बता दिया है कि जब मखरज से बाहर निकल जाएं तो कलकला हो जाता है, तो वो नहीं करना। ताहम अगर वक़्फ़ वाला हर्फ कलकला वाला हो तो वहां कलकला जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कायदा बच्चों के लिए है ना, जैसे बिगैरिल हक, बिगैरिल हक। यहाँ पर कलकला होगा ना ठीक है, जहाँ पे कलकला होगा, कुतुबुज्जद्दिन में से कोई भी हर्फ आ जाए तो कलकला होगा आखिर में जब, वरना किसी और हर्फ के ऊपर कलकला नहीं होगा। ठीक है, नून या रा मुशद्दद पर भी वक्फ एहतियात से करें, क्योंकि अक्सर तुलबा इन हरूफ में गलती करते हैं। कैसे? अन, 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 जहाँ पे, तो ये अब इसकी मिसालें आप कुरान में ढूंढ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जहाँ पे खत्म हुआ हमारा, काफी लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन ये आप लोगों को काफी मुश्किल लगता है, ऐसा ही है। हाँ जरा जी समझेंगे। ठीक है। हम्म, ये आगे भी इंशाल्लाह आएंगे, अभी इसका चलेगा और सेशन। ठीक है, वहाँ भी आ जाएंगे ये इंशाल्लाह। आगे भी आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिक्र की बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ठीक है, एक समझने की बात है कि इनको समझना कैसे है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। क्योंकि
इस तरह लें, इस नीयत से लें कि मैंने आगे भी देना है, ठीक है? वरना मैं आपको वैसे ही पढ़ा के चली जाती अम्मा, अम्मी, अम्मू, अन्ना, अन्नी, अन्नू। कोई मुश्किल था? नहीं। बहुत आसानी से आप जा सकते थे हाँ जी, आगे, हाँ जी, लेकिन मैंने मुश्किल आप लोगों के लिए क्यों पैदा की? ताकि पता चल जाए। ताकि पता चल जाए, ठीक है? आगे भी क्योंकि क्वेश्चन पता चल जी, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला तो इसका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कैसरा वाला अपने नंबर